ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੰਘਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਏਸ਼ੀਅਨ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬ੍ਰਿਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਂਸਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਏਸ਼ੀਅਨ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ 0746655 8301। ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆ ਔਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਹੈਗਾ 0300 770 2246। ਇਹ ਹੈਗਾ 0300 770 2246। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਫੀਰਾ, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੱਸ ਸਕੋ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ, ਕੌਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ, ਕੌਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਇਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੀਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਦਿ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੁਟੇਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਮੌਕਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਢੇਰਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿੱਤ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਇਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। मेरा ख्याल ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ हिंदी जानते हैगे आ। सो प्रोफेसर नाइक जी आपको हम वेलकम करते हैं। आप हमारे दर्शकों से आपका स्वागत है, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, गुड इवनिंग सब लोगों को नमस्कार। जी जी आपका yes. हम थोड़ा अपनी चुनौतियों के बारे में बता दें क्योंकि वाई इस एस्ट्रोलॉजी के बारे में हम ये चुनौतियां दे रहे हैं। ये तो
आप 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं एक दो सवाल आपसे पहले करने चाहता हूँ और उसके बाद में हम जो आपने चैलेंज रखा है, चुनौती रखी है, उसके बारे में बात करते हैं। मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रोफेसर नाइक हैं, इनका पूरा नाम नरेंद्र नाइक जी है और ये फीरा के प्रेसिडेंट हैं। और फीरा का मैंने आपको सब लोगों को बताया है कि इट्स अ फेडरेशन ऑफ इंडियन रैशनलिस्ट एसोसिएशंस, सॉरी, उसका छोटा करके ये नाम फीरा रखा हुआ है। प्रोफेसर साहब जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ाते थे, हाल ही में वो रिटायर हुए हैं और अभी जो उनका पूरा वक्त है वो समाज सेवा में लग रहा है और वो सोसाइटी के लिए ही काम कर रहे हैं। अब तक प्रोफेसर साहब ने बहुत से ज्योतिषियों को, बहुत सारे तांत्रों को और जो सो कॉल्ड गुरुज हैं उन सभी को चैलेंज किया है। तो उसके बारे भी हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये चुनौती कोई नई बात नहीं है, अभी तक उनके पास कोई भी ऐसा नहीं आया जो उनसे इनाम जीत पाया हो। और एक तरफ जहां बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो सिर्फ सोशल मीडिया पर व्यूज़ लेने के लिए कुछ ऐसी बातें करते हैं कि उनको थोड़ा फॉलो हो जाए, उनको थोड़ी फेमस मिल जाए। जो प्रोफेसर नाइक हैं या इनके जो कलीग्स हैं, उनको इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक लंबे अरसे से समाज के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि ये टाइम टू टाइम चुनौतीज़ इन लोगों को देते रहते हैं और उन पर बहुत सारे हमले भी हुए हैं जिस पे उनकी जान को ख़तरा भी है और वो चैलेंजिंग सिचुएशंस में बहुत काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो इंडियन पुलिस है कर्नाटका की, उन लोगों ने जो इनको सिक्योरिटी दी हुई थी, इनकी जान को जो ख़तरा था उसके मतलब, तो वो भी उन लोगों ने वापस ले ली है। हम ये बात आगे करते हैं। प्रोफेसर साहब, पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका जो प्रोफेशनल अब तक रहा है वो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं, और जो अब तक आपने सोशल एक्टिविज़म की तरफ से एक्टिविस्ट की तौर से आपने काम किया है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा ब्रीफ से आप बताइए प्लीज़। यस, थैंक यू वेरी मच। तो मेरा प्रोफेशन है मेडिकल बायोकेमिस्ट का जी, एंड आई वाज टीचिंग बायोकेमिस्ट्री एट अ मेडिकल कॉलेज कॉल्ड मणिपाल यूनिवर्सिटी। और मैं रिटायर नहीं हुआ। अच्छा जी। मैंने छोड़ दी थी 2006 में, क्योंकि मैं पूरे टाइम अपने आंदोलन को लगा रखूं जी, सो दैट पूरे टाइम आई वर्क फॉर दिस मूवमेंट। बिकॉज एक इवेंट देख के मैं तो बहुत अपसेट हुआ था जी। एक लड़की को तांत्रिकों ने सैक्रिफाइस किया जी और इसको फ्लेइंग कहते हैं ना अंग्रेजी में, इसका चमड़ा निकालना जी। वो निकाल के इस पर बैठ के वो सोच रहा था कि उसको वीडियो नजर आए, that he can visualize some hidden treasure. And I was so upset. और उस टाइम में मैंने सोचा कि मैं पूरे टाइम इसी पर लगा हूँ और मैंने नौकरी को इस्तीफा दे दिया। And so from that time I've been working full time for the movement. जी। It was not that I was not working for the movement before. 1976 से मैं ये काम कर रहा हूँ जी। 1976 में आपने अब्राहम कबूर का नाम सुना तो होगा, उनसे मिला था जी। और उनसे इंस्पायर हो गया कि इस आंदोलन के लिए कुछ करना है, क्योंकि हमारे देश में आप देखते हैं कि कितना सारे चीज हो रहे हैं। हमारे देश की बात तो सुनिए, पूरी दुनिया में हो रहा है। जब मैं आपके यहाँ आया था तब भी वहां भी मैंने कि कुछ लोग सुपरस्टिशन से ऐसे जुड़े हुए हैं, यहाँ से गए हैं, लेकिन यहाँ से जब जाते थे उन्होंने पोटली बांध के लेके गए हैं अपना सुपरस्टिशन भी जी, और वहां भी उनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार जब आया था वहां देखा कि एक आदमी ने लगभग 30,000 पाउंड खर्च कर चुके थे ब्लैक मैजिक पर। वो बोलते थे कि जालंधर में बैठ के कोई मुझको ब्लैक मैजिक कर रहा है, वो भी ये तो है बर्मिंघम में और ब्लैक मैजिक करने वाला जालंधर पे है,
और इस ब्लैक मैजिक को निकालने के लिए इन्होंने बहुत सारे पैसे भेजे जी ये मैंने आपके बर्मिंघम में एक प्रोग्राम में देखा एक प्रोग्राम था इसमें एक आदमी जो बैठा था वो बोल रहा था जी तो देखिए बात ये है कि एक और बात जब मैं आया था एक वाइल्ड एक बाबा का चमत्कार दिखाया था मैं एक बाबा वाइल्ड एक दिखा के इससे किसी का नाम निकाल के दिखा रहा था जी कि बिल्कुल देखने में इनफैक्ट वाइल्ड एक है लेकिन जब इसको ब्रेक करते हैं और अंदर घूमते हैं तो चिट निकल आती है जिसमें किसी का नाम है कुछ चीजें लिखे हुए थे वो भी मैंने दिखाया था क्या ये बात तो छोड़िए लेकिन ये जो है कि हमारे देश में सबसे प्रचलित गलत विश्वासों में ये है कि कोई भी फ्यूचर बता सकता है जी पास्ट बता सकता है आपके बारे में सब कुछ बता सकता है आपके हस्त देख के या आपके उंगली देख के या कुछ भूत से बात करके भूत प्रेतों से बात करके आपके बारे में बताते ऐसे बहुत सारे चीज प्रचलित है उनको मिटाने के लिए हम बहुत सारा काम कर रहे हैं हमने चुनौती दी है कि भाई तुम्हारे जो भगवान है या भूत है या जो कुंडली देख के आप तो सब कुछ बता सकते हैं जी तो सिर्फ एक छोटी सी बताइए मैं एक करेंसी नोट एक लिफाफे में डाल दूंगा इसका नंबर बताइए छोटी सी बात है कब किसी की शादी होगी कब किसी के बच्चे होंगे ये सब बड़ी बड़ी बात है ये तो बहुत छोटी बात जी बता दो बस अब एक तक एक भी आदमी नहीं आए रोज को कर सकते हैं और मैं बोला कि मैं अपने पूरे प्रॉपर्टी तो जब मैंने ये बोला तो लोग सोचे कि ट्राई करे और इसका प्रॉपर्टी हासिल करे इसलिए मैंने बोला कि भाई ऐसे ही नहीं जाएगा आपको डिपॉजिट रखना पड़ेगा एक 1% मेरे प्रॉपर्टी का वैल्यू का डिपॉजिट रखो अगर सक्सेसफुल हो जाओगे तो डिपॉजिट के साथ मेरी पूरा प्रॉपर्टी भी ले जाओगे अगर सक्सेसफुल न हो तो आपका डिपॉजिट जाएगा जी उसके बाद बहुत कम हुए ऐसी चुनौतियां क्योंकि मालूम है ना 1% जाएगा तो उसका अमाउंट जाएगा उसको मालूम है कि वो उसका पूरा ये बकवास है जी इसलिए वो हमारा चुनौती सीरियसली नहीं लेगा ऐसे ही ट्राई करने की कोशिश करने की मौका दिया जाए तो करेगा लेकिन ऐसे हम वेरी टाइट कंडीशन रखे और बोले कि डिपॉजिट रखो नहीं आएगा जी हाँ प्रोफेसर साहब हाँ हमें भी यहाँ पर बहुत सी ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं कि हम स्पेशल पावर हमारे पास है हम ये कर सकते हैं हम वो कर सकते हैं और मैं इंग्लैंड से बाहर हूँ या यूके से बाहर हूँ आप मेरा वीज़ा अरेंज कर दें तो मैं उधर आऊँगा और आपको मैं अपनी पावर दिखा सकता हूँ तो हम बोलते हैं उन लोगों को कि अगर आप पावर दिखा सकते हो तो उस पावर से थोड़ा वीज़ा भी ले लो तो फिर इधर आ जाओ तो फिर हम आपसे बात करने के लिए तैयार हैं जी देखिए आपका चैलेंज है ना जी वो किसी मद्रास के तथाकथित डॉक्टर ने लिया ये लगभग 25 साल पहले की बात है जी और आपको सचदेव गिरदी जी ने मेरा रेफरेंस दिया था जी और इनका लेटर आ गया कि आई कैन शो यू सम इफेक्ट्स ऑफ और मद्रास में वो जो रेलवे स्टेशन में मिला था 2 ट्रेन के बीच में 3 घंटे का गैप था मैंने इसको बताया था कि आ जाओ उधर और दिखा दो जी तो बोल रहा था कि मुझ पर ब्लैक मैजिक किया गया है हाँ तो मैंने बोला कि क्या ब्लैक मैजिक किया गया वो बोला कि मेरे लंग्स 50-60 ईयर ओल्ड के हैं जी लेकिन मेरा बॉडी तो 30 इयर्स का है मेरा एज तो 30 इयर्स है लेकिन किसी ने ब्लैक मैजिक मेरे लंग्स को 60 इयर्स ओल्ड का बना दिया तो मैंने बोला कैसे बोल सकते हो तो बोला मेरे पास स्कैन का रिपोर्ट है तो मैंने वो सोचा कि उसके पास स्कैन का रिपोर्ट है और ये स्कैन में कैसे बताते हैं कि आपका लंग 60 ईयर ओल्ड है स्कैन का रिपोर्ट दिखाओ बोला तो वो बोला कि कर्लियन स्कैन है कर्लियन स्कैन बिल्कुल बकवास है तो मैंने बोला ये सब बकवास है तुम क्या डॉक्टर हो
लगता है वो कुछ सिद्धा कुछ ऐसे प्रक्रिया है हमारे देश में, आयुष कहते हैं इसको, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। जी। वो डॉक्टर था वो सिद्धा का। तो मैंने बताया मैं मंजूर नहीं, तुम डॉक्टर नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो। तो वो बोला कि हमारे डीएनए टेस्ट कर दो। ब्लैक मैजिक करके किसी ने मेरा डीएनए बदल दिया है। अच्छा जी। और मैंने बोला कि भाई डीएनए चेक करना क्या बकवास है। उस टाइम में इतना आसान नहीं था, 25 इयर्स बाद। जी। तो वही उनका चुनौती में। तो आपका 10,000 पाउंड का चुनौती था चैलेंज उस टाइम में, जी। उसको लेना चाहता था जी। तो आपके लिए मैंने वो चैलेंज दिया था, वही खत्म हुआ, खत्म हुई ये बात। देखिए एस्ट्रोलॉजी इतनी खतरनाक चीज है कि इस पर आप भरोसा रखिए, अपने सब कुछ खो सकते, ट्रू। ऐसी बात होती। जैसे हमारी जिंदगी में ऐसे हुआ था जी। मेरे पिताजी ने अपने सारे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, अपना पर्सनल प्रॉपर्टी, सब कुछ इस एस्ट्रोलॉजिस्ट के एडवाइस को मान के खो दिया। अच्छा जी। हाँ। और इसी के कारण लगभग 60 इयर्स से उनके खिलाफ, उनकी हमारे पूरे लाइफ को बिगाड़ दिया इन एस्ट्रोलॉजिस्ट। जी। और ये भी वो एस्ट्रोलॉजर इतना बकवासी एस्ट्रोलॉजर था जी। कि जब वो मर गया जी, किसी को मालूम नहीं वो मरा था, क्योंकि वो जो मर गया उसकी पूरे फैमिली तीर्थ यात्रा पे गए थे और वो अकेला था घर में। जी। उसको मालूम ही नहीं था कि वो कब मरने वाला है, दूसरों को सब बताने वाला, सही बात खुद है। की मृत्यु कब होगी तो मालूम। जी। इसको वो मर गया था 3 दिन बाद, जहाँ इनके घर से स्मेल आने लगा, नेबर से सोचा कि कुछ हुआ है गड़बड़ी है। जी। डोर ब्रेक करके इसका लाश पड़ा था अंदर, पूरा रॉटन हुआ था, लोन सीधे हुए। जी। ऐसी बात। जी। तो प्रोफेसर साहब, आपने बहुत सही एग्जांपल्स दी हैं। सो मुझे उम्मीद है कि हमारे जो सुनने वाले हैं, दर्शक हैं, वो देखने वाले हैं, सो वो इससे उनको मालूम पड़ेगा कि ये कितना बकवास जो है, जो कितना इस बेसलेस है। सो अगर आप जो आपने अभी चैलेंज किया है कर्नाटक की इलेक्शन के रिगार्डिंग, आप हमें थोड़ा उसके बारे में बताएं कि वो चैलेंज क्या है, और आपको ये सवाल तो नहीं मुझे करना चाहिए मगर मैं फिर भी करूंगा कि आपको क्यों लगा कि आपको जो चैलेंज है उनको करना चाहिए। देखिए, ये जो पहली बार तो मैं नहीं कर रहा जी। ये सब 30 वर्ष में चैलेंज करता ही रहा जी, इसमें डेफिनेटली। 2 बात, एक तो अगर एस्ट्रोलॉजी सच है तो I can lack and probably much more, क्योंकि अगर आप ऐसी चीजों को किसी को कुंडली देके या कुछ दूसरे फैक्टर्स देके बता सकते हो जी। तो इट इज रियली fantastic thing. There is nothing for me to lose my 10 lakhs. And I think और भी ऑर्गेनाइजेशन से जो उसको करोड़ों देंगे, हमारे देश में ही लगभग 3-4 ऑर्गेनाइजेशन से जिन्होंने 1 करोड़ 60 लाख ऐसे चैलेंज दिए। जी। तो they can go ahead and take the money and become very rich, but they know very well that ये पूरा बकवास है। हमारे देश में आप ऐसे देखिए, जब चुनाव आते हैं, नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जब वो कैंडिडेट जाते हैं जी। अपने एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करके ही जाते हैं जी। कि कौन से टाइम पे नॉमिनेशन फाइल करना है एंड विच इज द बेस्ट टाइम टू फाइल नॉमिनेशन सो दैट दे कैन विन द इलेक्शन। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हर कैंडिडेट ऐसे ही करके नॉमिनेशन फाइल करेगा, तो इसमें कौन जीतेगा? जीतेगा कौन? सही बात है। जी। तो इसको लेकर जी ब्लैक मैजिक बहुत सारी चीजें चुनाव से जुड़े होते हैं। इसी बार मैंने देखा चुनाव में कि क्या क्या ब्लैक मैजिक के मामले हो रहे थे। वो वीडियो भी है यूट्यूब पे, ब्लैक मैजिक जी, जिसमें एक कैंडिडेट को ब्लैक मैजिक किया था और इत्तेफाकन वो कैंडिडेट डिफीट भी हो गया। तो अब आप कह सकते हैं मैंने ब्लैक मैजिक से वो डिफीट हो गया। जी।
है ना? सो इसकी तो ऐसे भी बात होते हैं। हाँ प्रोफेसर साहब, बताइए। इसकी आपने क्या क्या कंडीशंस रखी हैं इस चैलेंज के लिए, थोड़ा उसके बारे में बताएं, और ये भी बताएं कि जो चैलेंजर होगा, जो चुनौती देगा, उसको क्या प्रूव करना होगा। To put in a nutshell, वो challenges सारे चीजों को elaborately क्या होता है। मैंने 20 क्वेश्चंस पूछे, इसमें इसको 20 मार्क्स दिया जाएगा। Each right answer will be 1 mark. जी Wrong answer 2, no negative marks. जी So if you answer the question within 95% confidence limits, that means 20 answers पर आपका 19 correct हो, तो आपको 10 लाख। And if more than one correct entry is received, the money will be divided among equally among all of them. जी और ये भी मैंने रखा कि no increase will be accepted from minors, 18 के बिलो है उनसे increase नहीं लेंगे। दूसरी बात है कि mentally unsound people का increase नहीं लेंगे। One person can send only one entry. And Right. 10th is the date of the date of election. That is the last day for receiving it. राइट May 13th को counting. Somebody can send me an entry on May 13th and say, I answered the report. तो इसलिए हमने डेट भी लिखा, जी लेकिन कोई डिपॉजिट नहीं रखा। You can send your entry free, no problem, but you will get the. और मैंने ये भी कहा कि तुम्हारा मेथड बताओ, by which method did you come at this finding? और इसमें किसी भी मेथड आप यूज कर सकते हैं, any method, including any scientific methods also. जी You can use even statistical analysis, you can use pathology, कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि कौन से मेथड यूज करके आपने प्रेडिक्शंस किए हैं। किया, ठीक है। So, which are already I think sent to my जी and these are the 10 preliminary conditions. Then come the 20 questions. जी Some questions are not so which party will be power. जी Then how many seats will each of the parties get? That's not all that easy. Because I said you cannot give me a range. जी देखिए बात यह है, आप पूछे कि इस पार्टी को से बीजेपी को कितने सीट आए, they may give an answer he gets from 10 to 150 seats and 15 मिला तो भी वो बोलेगा मैंने बताया था ठीक से, जी 115 मिला तो भी बताएगा मैंने ठीक से बताया। जी। तो ऐसे you cannot give a आपको एग्जैक्ट नंबर देना पड़ेगा। And I am willing to take the answer with an error margin of plus or minus 5%. जी अगर 110 सीट्स आए, आपने 105 लिखा है तो भी हम इसको सही मानते, 115 लिखा है तो भी हम सही मानते। ठीक है। So we are giving a margin there. राइट That is some of these so-called general questions. जी But हमारे साथ आपको specific questions हैं, जिसमें हमने पूछा है कि I have selected some important candidates and said how many votes is he going to get? भाई देखो तो बताना आसान होगा, जी क्योंकि तुम ही इसको बोलते हो इसी टाइम पे नॉमिनेशन फाइल करो, ये ठीक सा टाइम है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। जब तुम ये बोल सकते हो तुम ये भी बोल सकोगे, बोल दो भाई। ऐसे क्वेश्चन है। और इसमें एक क्वेश्चन भी है, you select the candidate and you say how many votes he or she is going to get. आप ही पर छोड़ दिया है। You select the candidate and you can even select a candidate whom you know very well and say 0 and you may get full 1 mark for that. राइट And one of our rationalist friends is contesting for the election. Of course, we know that his chances of winning are almost 0, but we have put his name. That's how many votes he will, because we want our rationalists to get some publicity. जी So these are the 20 questions about the candidate, and these are all given in my Facebook page. You can go there and check.
Like willing to, और my Facebook page is an open page, राइट, और I'm a public. अब वहाँ जाइए, देखिए, पूरे क्वेश्चन से कॉपी कर दीजिए और मुझे पोस्ट से भेजिए, जी, नहीं तो मेल कीजिए. I told the women with the thing. I already got some, I think, 7 or 8 entries. This time it looks like not many entries may come. Because एक बार मुझे याद है कि 100 entries आए थे, 700. And that too from places like Indonesia, Malaysia, Nepal. वहाँ से भी मुझे entries आए. लेकिन this time the press is so much in the pocket of the Manwadi Bharatiya Janata Party that they will not even give publicity to my challenges, because that challenge itself is a challenge to Manwad, right? And Brahmanism, because this astrology is a part of Manwadi Brahminical setup, जी, which they are trying to use, exploit people, because even your Kundali is written by a Brahminical guy. It is एंड आपके कुंडली में कुछ प्रॉब्लम है तो घबराइए मत, हम हैं ना, हाँ, इसके लिए कुछ करेंगे. इसके एंड जो करना है जी, दैट विल इन्वॉल्व द पेमेंट टू मनवादी जी, ब्राह्मण. जी, ही विल से यू हैव टू डू सो मेनी रिचुअल्स एंड देन व्हाटएवर मिस्टेक्स आर देयर दे विल बी करेक्ट. तो मैं बोल रहा था भाई, अगर जो आपकी विधि पे लिखा है तो कोई भी बदल नहीं सकेगा, तो आपकी पूजा से वो कैसे बदलेगा? बदलेगा, ट्रू, हाँ. प्रोफेसर इसी से साहब विधि आप, लिखित है. हाँ, एक बात और बताएं कि आपने ये जो चैलेंज रखा है इसके लिए किसी न्यूज़पेपर में डाला है या किसी फेसबुक में या ना आया, हाँ, कैसे लोग आया. आपसे कांटेक्ट करेंगे? वो मैंने अपना एड्रेस दिया है, जी, पोस्ट करो उसको. जी, मैं ईमेल आईडी दिया है, बोला कि ईमेल करो उसको. जी, जी, नहीं तो देखिए, हमारे देने की क्या जरूरत है? एस्ट्रोलॉजर्स है जो सब कुछ जानते हैं, जी, वो तो अपना शक्ति प्रयोग करके हमारा एड्रेस पता लगा. ट्रू, सोच लीजिए, हाँ, या, हमारा एड्रेस नहीं, हाँ, वो खुद पता लगा कर सकते. सब कुछ लगाएगा, ठीक है. ये पूरे के पूरे बकवास और ये पूरे तथाकथित भविष्य बताने वाले लोग आपकी कुंडली नहीं पढ़ते हैं, वो आपका बॉडी पढ़ते हैं. We call that as cold reading, by technical language. वो आपके बॉडी क्लूज यूज करते हैं, आपके आंसर से वो अपना क्लूज लेते हैं. जी, कई तरह methodologies they use to find out and they get the answers through, and आप सोचते हैं कि इन्होंने सही बोला है, जी, लेकिन सही बोला है आपने, मैंने नहीं. आपको हाँ, और ऐसे भी कुछ. यस जी. प्रोफेसर साहब, ये बहुत हमें भी ये क्वेश्चन आता है, आपको भी बहुत दफ़ा ये लोगों ने पूछा होगा कि कभी लोग आपको आते हैं, अप्रोच करते हैं, तो फिर वो बोलते हैं कि मैं जो सो एंड सो एस्ट्रोलॉजर या कोई भी ऐसा भविष्य बताने वाला उसके पास गया था, उसने मुझे ये बोला और जो उसने बोला था वो वैसा ही हुआ. तो ऐसे जो अप्रोच है उसको आप कैसे डील करते हो? इसको इत्तेफाक कहते हैं, इसलिए हम बोलते हैं भाई जी, ऐसी बातों की हमें जरूरत नहीं है. मैं आपको एक फ्यूचर इवेंट प्रेडिक्ट करने के लिए बोलता हूँ, इसका टाइम भी देता हूँ. जी, अगर आप चाहे तो कुंडली भी चाहिए तो आप ऐसे करें कि एक आदमी को लाइए जिसका कुंडली है. जी, देखिए द फ्यूचर इवेंट ऐसा होता है कि एक लिफाफा खोलेगा, इस लिफाफे के अंदर एक नोट होगा. जी, वो नोट को लेकर उसका नंबर पड़ेगा. जी, और आप पहले ही बता दीजिए कि वो क्या नंबर पड़ने वाला है. जी, और इसको हम सील करके रखेंगे. और ये जो आपने प्री डिटरमिन टाइम पे जिसका कुंडली आपने पहले ही लिया है, अभी का आदमी हो तो भी कोई प्रॉब्लम, वो कर रहा है ये काम, और इस काम को आपको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा. जी,
इसमें क्या हो रहा है। I don't want the generality, I want the specificity, that is the number of the note. बस अगर ये सही निकला तो हम फिर प्रॉपर्टी दे देंगे जी। वो एक है। दूसरा तो इलेक्शन रिजल्ट, फ्यूचर इवेंट जी, है ना, सही बात है। तो we can predict that. हाँ, देखिए ऐसे तक है कि एक आदमी का नाम आपने सुना होगा, तो राणा है उसका बेटा भी एक फिल्म एक्टर है जी। राणा, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज चंडीगढ़ पे इनको बुलाया था टू स्पीक अबाउट एस्ट्रोलॉजी एंड मेडिसिन जी। इसका पूरा बर्बाद कर दिया लोगों ने क्वेश्चंस पूछ के। वहाँ हमारे पंजाब तक सीट भी थे, वो भाग गया वहाँ, तो पूरा मुंह काला, जो पूरा बकवास बोल रहा था, सोच रहा था कि कोई चैलेंज नहीं करे क्योंकि इसको डायरेक्टर का गेस्ट, तो सोचा कि जब डायरेक्टर बुला रहे हैं कोई इसको क्वेश्चन नहीं करे। लेकिन बात तो ये है कि डायरेक्टर पोस्ट इज बाय रोटेशन, इसमें कुछ प्रोफेसर थे जो सीनियर टू द डायरेक्टर, जिन्होंने इसको छोड़ा ही नहीं, बोले कि हम आपको बस हॉरोस्कोप देंगे, इसमें कौन सा पेशेंट का है, कौन सा नॉर्मल आदमी का है बता दो। एक पीडियाट्रिक का प्रोफेसर बोले कि जब बच्चा पैदा होता है हम इसको कुंडली बना के तुम्हारे हाथों में दे देंगे जी, और तुमको बोलना है कि इसको कब क्या बीमारी होगी, और ऐसे भी करो कि इसका ट्रीटमेंट भी लिख दो, तो वो भी जब तुम बोलोगे जी। किसी हमारे पंजाब का एक आदमी जब वहाँ के प्रेसिडेंट था, नॉन टीचिंग स्टाफ यूनियन का, उन्होंने बोला कि हम इतने करोड़ों खर्च कर रहे हैं में डायग्नोसिस के लिए, टेस्ट करने के लिए, स्कैनिंग करने के लिए, इससे हम ऐसा करेंगे कि हर पेशेंट को अपना कुंडली लेकर आने को बोलेंगे, तुम एक आदमी बिठाओ उधर, कुंडली लेके बताओ कि इसका क्या बीमारी। सही बात है, सही तो बात है। ऐसे हाँ प्रोफेसर साहब, जो मैं एक बात जो आपसे और पूछना चाहता हूँ वो ये कि ये जो नए पंडित जी हैं, अभी महाराज जी हैं, जहाँ जे एस्ट्रोलॉजर हैं, जे अपने सामने ये लैपटॉप निकालते हैं, जहाँ कंप्यूटर निकालते हैं और लोगों को ये इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं कि जो इनकी कैलकुलेशंस हैं वो कंप्यूटर के साथ की हुई हैं और ये बेस्ड ऑन द मैथमेटिक्स। सो ये सभी उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कि इस प्रॉपर साइंस, पर आप हमें और हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये साइंस क्यों नहीं है, जहाँ वाई इज नॉट ए बेस्ड ऑन द मैथमेटिक्स, द एस्ट्रोलॉजी। देखिए बेसिक फंडामेंटल क्या है एस्ट्रोलॉजी का जी, वो आप सोच, नवग्रह बोलते हैं, 9 प्लैनेट्स, सन इज अ स्टार, इसमें मून इज अ सैटेलाइट जी, राहु एंड केतु और इमेजिनरी पॉइंट्स, तो 4 चौपट हो गए इसमें, और जो बचे हैं इसमें अर्थ का नाम है ही नहीं, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रह फॉर अस। सो what more we want to prove that astrology is not based on science, और क्या चाहिए जी, but people are believing because they are conditioned, बचपन से ही अपने सर पे डाला है कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। जैसे आप एक पे के सामने कैलकुलेटर रखिए और कैलकुलेट करने को बोलिए, ऐसे ही है ज्योतिष, जिसके सामने आप कंप्यूटर रखे तो कुत्ते के सामने कैलकुलेटर रखना है या मंकी के हाथ में एक कैलकुलेटर देना, ऐसा ही है जी। तो just because the instrument is there, do not think that the user knows how to use the instrument जी। And मेरे एक दोस्त है, he is the principal of a college, he is a PhD in mathematics, he is so good at astrology that he can even do the horoscopes of the Rama and Krishna and people like that. Right. And he says astrology is bakas. Just to prove that it is bakas, he's doing all that. Because he's a far better mathematician than all of this people. And they think that just because they're predicting the full moon and new moon, because they're all calculations.
एक्लिप्सेस, वो तो एक सारा साइकिल है, इससे मुताबिक ये चलते हैं। अगर ये प्रेडिक्ट किया तो देखिए, लाइक मी टेलिंग यू 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8, 8 + 5 = 22। क्योंकि ये पहले 4 तो ठीक थे तो 5 और भी ठीक है जी। तो दिस इज समथिंग लाइक दैट। So say predict something like a natural event which is cyclical, and then say that because I can predict that, जी I can also predict your future. जी So that is how they convince you. And they also tell you some stories that I predicted that Trump will win the election, or I predicted that Biden will win the election, or the astronaut will become the prime minister. Because 100 astrologers would have made 100 predictions, and इसमें एक जो सच निकलेगा इसको वो टॉम करेंगे और बोलेंगे कि देखो कितना साइंटिफिक है एस्ट्रोलॉजी, तो 99 रॉन्ग हो गए, इसके बारे में कोई नहीं बोले। जैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट से इलेक्शन प्रेडिक्ट करना बहुत आसान, 50% एस्ट्रोलॉजर्स बोलेंगे कि ये नहीं होगा, 50% बोलेंगे कि वो होगा। इसलिए हम बोलते तो स्पेसिफिक बोलो भाई, ऐसी चीजों की जरूरत नहीं जहाँ प्रोबेबिलिटी 50-50। एक बार एक आदमी ने लिया था एस्ट्रोलॉजर ने जी, मैंने एक चैलेंज था कि 10 लोगों की कुंडली दे दूंगा, बता दो कि इसमें हु इज डेड, हु इज अलाइव, हु इज मेल, हु इज फीमेल, एंड आई विल गिव यू 10 lakhs। तो उसने सोचा कि 50-50 का चांस है, ट्राई करेंगे। तो उसने पेपर में ये दे दिया स्टेटमेंट, he is willing to take my challenge. I said, okay, we will fix the date, we will have it in front of the press. तब उसको पता लगा कि chances are not 50-50. अगर एक कुंडली दो और बताओ कि मेल और फीमेल, इसका चांसेस 50-50 है जी। लेकिन जब 10 कुंडली देंगे, chances of predicting all the 10 correctly are 1/2 to the power of 10 जी। And when you say predict also, again the chances there are 1/2 to the power of 10 जी। So for saying dead or alive or female, the chances of prediction 1/2 to the power of 20। तब इसको पता लगा और बोला कि अब नहीं होगा, मेरे बेटे की शादी के बाद होगा। तो मैं इसका बेटे का शादी हुआ होगा, शायद इसके पोते का भी शादी हुआ होगा, अभी तक का पता होगा। लास्ट 2 इलेक्शन के पहले कर्नाटका के इलेक्शन का प्रेडिक्शन का चैलेंज इन्होंने पेपर में दिया था कि वो प्रेडिक्ट करेगा जी। तब मैंने स्टेटमेंट दिया, कर दो, मैंने क्वेश्चंस पूछे, फिर भी तब भी वो भाग। अब तो उसका स्टेटमेंट में नहीं देख रहा, इसका नाम है भास्कर शेट्टी जी। तो ये सब लोग जनरलाइज स्टेटमेंट्स करते हैं, सेल्फ फुलफिलिंग प्रेडिक्शंस करते हैं, अलग अलग तरीके से आपके बारे में ठीक बताते हैं जब आप उनके पास जाते हैं। वो भी एक टेक्निक है। देखिए कैसे होगा कि आप प्रॉब्लम में, आपका एक दोस्त बोलेगा भाई तुमको बहुत प्रॉब्लम्स है, इसका सोल्यूशन हमारा ज्योतिष बताएगा, मैं तुमको इसके पास ले जाऊँ। और जब आप जाए ज्योतिष आपके बारे में बिल्कुल सच बोल रहा है, क्यों आप ही सोच लीजिए, क्यों दोस्त ने इसको बताया जी जी। तो ऐसे सब बातों के बारे में सोच ही नहीं करते, और हमारे मेमोरी सिलेक्टिव भी होता है। तो सच निकला हम इसको याद रखते, तो झूठ निकला इसके बारे में हम सोचते भी नहीं। अगर इसने 10 प्रेडिक्शंस किए और 9 झूठ निकले तो हम सब भूल जाते। वो एक सच निकला, उसी को लेकर इसने बोला था देखो कि मेरे बच्चे का शादी होगा, इस दिन हो गया ट्रू। लेकिन वो वो आप भूल ही जाए सिलेक्टिव जी जी। सो थैंक यू प्रोफेसर साहब। हाँ प्यारे दर्शकों, ये प्रोफेसर साहब ने जो अभी बात की है कि जो वो आपको बताते हैं कि जो आम सी बातें होती हैं वो कभी इत्तेफाकन कोइंसिडेंसली वो निकल आती हैं, तो फिर उनको आपको लगता है कि शायद जो उसने बताया वो सही था, वो तो ऐसे भी होने वाला था। मगर जो जैसे प्रोफेसर साहब ने बोला कि अगर आप उनसे स्पेसिफिक कोई ख़ास बात पूछें कि एक कौन से टाइम पर
कितने बजे कितने सालों में कितने दिन में ये होने वाली बात है, तो फिर शायद आप मान सकते हैं कि उसमें कुछ सच है। और यही बात हम बार बार आप सभी लोगों से शेयर करते हैं, बताते हैं। प्रोफेसर साहब ने भी बहुत सारी एग्जांपल्स दी हैं कि जब भी वो स्पेसिफिक की इंफॉर्मेशन मांगते हैं उनसे कि आप ये हमको बताइए कि ये होगा और इस टाइम पे होगा, तो फिर वो उनकी प्रेडिक्शन कभी भी जो है वो सही नहीं निकलती है। सो जब भी आप किसी से भी पूछें या कोई भी आपको ये बताए कि जो फलां ज्योतिषी है वो ठीक ठीक बताता है, तो आप ये अपने मन में ज़रूर, अपने माइंड में ये ज़रूर रखें कि वो जो ज्योतिषी ने बताया था वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी, जहाँ वो उसको आपने जनरली कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया और वो कोइंसिडेंटली जो ठीक हो गया। सो ये सभी बातें हम इसीलिए आपके साथ ये शेयर करते हैं कि आप जो इन लोगों पर कोई भी विश्वास मत करें, इनके पास कुछ भी नहीं है। और प्रोफेसर साहब ने एक और बड़ी कमाल की बात जो हमारे साथ फैक्ट शेयर किया है कि ये जो कुंडली बनाते हैं उसमें अर्थ का जो है, हमारी धरती जहाँ पर हम रहते हैं वो तो उसकी कैलकुलेशन में आती नहीं है, जो दूसरे 9 ग्रह हैं वो आते हैं। और प्रोफेसर साहब ने ये भी बताया कि जो राहु केतु हैं वो प्लैनेट नहीं है, जहाँ कोई भी ग्रह नहीं है, सो वो मार्क हैं, इमेजिनरी मार्क हैं समवेयर इन द स्पेस। सो जो उनके ऊपर प्रेडिक्शन करते हैं तो वो कैसे ठीक हो सकती है। प्रोफेसर साहब मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ, वो ये कि जो काफ़ी पुराना जिसको क्लासिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, उसमें वो पहले 7 प्लैनेट्स के ऊपर कैलकुलेशन करते थे, अभी 9 पे करते हैं। ये बात कितनी ठीक है? पूरा बकवास है ना। 7 प्लैनेट से 9 कैसे हो गया? हाँ, और दूसरे प्लैनेट्स भी को भी ऐड करना है ना जी, क्योंकि नॉट विजिबल टू द आई, नेकेड आई जी। अच्छा, और ये भी एक बात आप मान लीजिए, people say it is a part of ancient Indian knowledge. It is not. Astrology has come from Greece to Egypt, and Egypt to India. So it is not an old Indian science. And there are so many parashas. And Pancham Bhavati, Pancham na Bhavati also. That's what they say. 5 will happen, 5 will not happen. So these are all what we call as, it cannot be called as accurate predictions or statements about it. It can be called more as soothsaying, telling you घबराओ कुछ नहीं होगा, और अगर बच गया तो आप सोचेंगे यार कुछ नहीं हुआ क्योंकि इसने बताया, तो कुछ होगा तो आपको लोग हमारा फेट ऐसा ही था तो ऐसा ही होगा जी। So they have got a whole population ready as victims, क्योंकि हमको फेट में तो बचपन से ही बताया जाता है, जो विधि लिखित है कोई चेंज नहीं कर सकता जी। तो वो भी हम सोचेंगे कि जो लिखा है वो कोई पढ़ सकता है और हमको बता सकता है, और वो है वो एस्ट्रोलॉजी। और हमेशा देखिए जो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस करते हैं वो कौन सी जात को, इसमें कास्ट भी आता है जी। एक जमाने में पूरा लिटरेसी और ये नॉलेज और ये श्लोक संस्कृत में थे ना जी, एंड दैट वाज द लैंग्वेज ऑफ द यूनिटी व्हिच कास्ट वन। सो दे हैड अ मोनोपोली ओवर दैट। सो आपको किसी का भी इंटरप्रिटेशन करना है तो उसी के पास जाना जी, और उसका लिविंग तो ये हो गया वन ऑफ द वेज ऑफ लिविंग। और आपको आज सुबह घड़ी चाहिए तो उसके पास जाओ, तो कुछ भी बोलेगा तो करेंगे। देखिए सुबह घड़ी अगर आप बोले कि इट इज इन द आफ्टरनून एट 12:30 एंड ऑन दिस डे, आप बोलेंगे नहीं नहीं उस टाइम पे हमें दूसरा ये है, तो बोलेगा नहीं 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 यू कैन डू इट ऑन द डेट एट दिस टाइम जी। और उसके से नॉट सुटेबल, देन ही विल से ओके व्हाट इज सुटेबल फॉर यू, and in that he will make a minor modification and he will say if you do some puja जी, this can be converted into good muhurat
So that is the way he will take your money. He will say that there is a very bad karma for you happening on this event, particularly during eclipses. तो ग्रहण होते हैं ना, उस टाइम तो इनके लिए बम्पर टाइम है. इनकी बोलेंगे कि ये नक्षत्र वाले को, ये राशि वाले को कुछ नुकसान होगा जी, और इसको ठीक करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा जी. एंड जो करना है इनएविटेबली विल इन्वॉल्व ए पूजा, मनी टू हिम. जी. और पीपल ये सोचते भी नहीं है, ये सोचते हैं कि वो तो फेवर कर रहा है कि जो पूजा करके इसको टाल रहा है. एक्चुअली ही इज डूइंग नथिंग, ही इज सिंपली ईटिंग योर मनी. जी. एंड व्हेनेवर समबडी डाइज, जी. जैसे बुरे टाइम पर मर गया जी. और इसका आत्मा तो स्वर्ग पाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा. दैट बिगिन सम रिचुअल, जो 100 cows, 1000 sheep, 500 goats, वो ये नहीं मिलते हैं. ठीक है, कोई बात नहीं, पे फॉर इट, यू पे द मनी, इट इज इनफ. एंड टू whom to pay the money, you know who takes the money, but I may not tell you again. वो वही होगा जो बोल रहा है जी. तो our people ऐसे के बारे में सोचते ही नहीं जी. ये सोचते हैं कि हमारे पूर्वज को स्वर्गलोक भेजना है जो मर गए हैं, नहीं तो ये नरक जाएंगे जी. नहीं तो ट्यूशन को होके भटकते रहेंगे आत्मा रूपे. जब मेरी माँ मर रही थी ऐसे ही हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया. जी. जब मेरे पिताजी मर गए तो मैंने कुछ नहीं किया. और हमारे फैमिली वाले, मुझे फैमिली बट और एक्सटेंडेड फैमिली वाले वो बोल रहे थे कि तुम्हारे कारण ऐसे अशुभ हो गया, विष हो गया, दादा ऐसे रहने दो भाई, थोड़ा देखा जाए जी. और जब मैं मर जाऊंगा ऐसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं कि सब लोग पूछने का, नरक लोग भेजने का. मैंने तो अपना बॉडी डोनेट कर दिया मेडिकल कॉलेज जी. कि बॉडी डिस्पोजल का प्रॉब्लम भी ना हो. So this is the way we should live. We should live rationally, we should live scientifically, and we should try to be as useful to the society even after our death. Which many of us do not think of. नहीं, सही बात है. आप प्रोफेसर साहब यही हम कहते हैं कि जब भी आप किसी पंडित या किसी भी पंडित का नाम दोबारा आ जाता है, किसी भी ऐसे जो भविष्य बताने वाला है उसके पास जाते हैं तो आपका माइंड पहले से बंद हो जाता है. आप एक सेंस ऑफ बिलीफ के साथ जाते हैं कि हम उसके पास जाएंगे, वो हमें बताएगा, और एंड दे टेक एडवांटेज ऑफ दैट. Yes. See, when do you go? जी. Again you think of जी. कब जाते हैं? जी. When your mind is weak. जी. When you are in trouble. And when somebody is having a serious illness. Yes. During those times you go. वो उसी का एडवांटेज लेते हैं जी. और आपको क्वेश्चन करते हैं. It's not people do not follow. That's right. And or some should thing like a marriage. Yeah. That time you are in a good mood. आपके बेटे की शादी. So he will tell you some शुभ मुहूर्त. So you are in a good mood. कर दोगे तो. So they are looking for things like that. जी. See, I can tell you such foolishness. मेरे पिताजी जी. मुझे तो बहुत बढ़िया स्कॉलरशिप मिला था जब मैं 16 years old था जी. और मुझे मद्रास चेन्नई में तो जाना था कॉलेज जी. हमारे जो पिताजी उन्होंने इतने नॉनसेंसिकल डिसीजन लिए थे कि हमारा बिजनेस जो चल रहा था वो दुकान भी बैंक ने कब्जा किया था. राइट. तो ये मेरे पिताजी मुझे बोले कि जब मैं छुट्टी पे आया था वो बैंक मैनेजर से जाके पूछ लो कि कब कितने पैसे दिए तो वो हमारा दुकान छोड़ लेंगे. तो मैं गया बैंक मैनेजर के पास, 16 year old boy. तो मैनेजर वाज अ वेरी काइंडली पर्सन. वो बोला बेटा क्यों आए जी. क्या हुआ, कैसे हो, कुछ पढ़ाई सब जी. तो मैंने बोला अंकल जी हमारी दुकान आपने कब्जा किया जी. इतने पैसे दिए तो आप इसको छोड़ देंगे जी. तो उन्होंने क्लर्क को बुलाया, क्लर्क ने देखा और बोला कि ये सब ऐसे कुछ 1000 रुपीस कुछ पैसे दिए तो हम छोड़ देंगे. हमें पैसे, आपकी दुकान थोड़ी ही गई, हमें चाहिए हमारे पैसे. और इसने पूछा कि क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर बोले कि पैसे देंगे? मैंने बोला मालूम नहीं.
जी तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बोला नहीं नहीं वो मुझे भेजो। मुझे तुझे क्यों भेजे मालूम है? हाँ प्रोफेसर क्योंकि साहब, अगर वो हालत में डालता हूँ प्रोफेसर साहब ये हमारे तुम्हें पास भेजो। 1 मिनट का समय रह गया है, आप इसको थोड़ा सम अप कर दें हमारे लिए कि हमको कैसे इन लोगों से बचना चाहिए। 50 सेकंड हमारे पास हैं। Don't go to them. Simple. या Trust in your own judgment. Thank you. Consult the people who are expertise in the field. Sorry that I go out. जी Thank you very much. ਥੈਂਕ ਯੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ And ਸਾਹਿਬ। good night. ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਨਾਇਕ ਜੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।